Hello students, welcome back. We will continue our previous topic, pair of straight line. See exercise 4.2. In exercise 4.2, now see the question. Find the combined equation of lines passing through the origin, each of which making an angle of 30 degree with the line. Equation of line is given 3x plus 2y minus 11 equal to 0. फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा है. तो सी द x axis and y axis are perpendicular to each other. The lines OA and OB makes the angle 30 degree with the line. Equation of line is 3x plus 2y minus 11 equal to 0. Okay, so write down, let OA and OB be the lines makes an angle 30 degree with the line. What is the equation of line? 3x plus 2y minus 11 equal to 0. Okay, now let m be the slope of line. Let m1 is equal to m be the slope of line OA or line OB. Take any one. M1 is equal to m be the slope of line OA, or either you can take OB, any one. Now let m2 be the slope of line. M2 be the slope of line 3x plus 2y माइनस 11 इक्वल टू 0. इस लाइन से आपको लिखना है स्लोप. कैसे लिखते हैं स्लोप? स्लोप इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोएफिशिएंट. तो m2 कितना आएगा? m2 इज इक्वल टू माइनस 3/2 माइनस एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट. सो इट इज माइनस 3/2. नाउ थीटा इज गिवन. थीटा इज इक्वल टू 30 degree. Okay, if theta is the acute angle between the lines. कौन सी लाइन है? OA and given line 3x plus 2y minus 11 equal to 0. What is the formula for tan theta in terms of slope? क्या फॉर्मूला tan theta का? Tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Okay, what is m1? M1 is m. M2 is minus 3/2. Minus plus 3/2 upon 1 plus m1 is m, m2 is minus 3/2, isn't it? Now here theta is 30 degree, so tan 30 degree is equal to, take LCM. LCM is 2m plus 3. Here also you can take LCM. LCM is 2 ones are 2, m इंटू माइनस 3m. दोनों का डिनोमिनेटर 2 कैंसिल. क्या रहेगा? 2m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m. नाउ हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? tan means sin upon cos. tan 30 sin 30 half, cos 30 root 3/2 is tan 30 1 upon root 3. So 1 upon root 3 is equal to 2m plus 3 upon 2 minus 3m. Okay, now squaring this. Squaring करेंगे तो क्या होगा? 1 by root 3 का स्क्वायर 1 upon 3. इसका स्क्वायर होगा 2m plus 3. मॉड निकाल दीजिए, स्क्वायर है 2m plus 3 होल स्क्वायर
अपॉन 2 माइनस 3m होल स्क्वायर, 2 माइनस 3m होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये आएगा लेफ्ट में, इसका स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए। 2 स्क्वायर 4, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 12m माइनस 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मध्ये 3, इसका स्क्वायर 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 plus 12m, 3 square is 9. Now multiply by 3, 3 is outside the bracket. So this becomes 4 minus 12m plus 9m square is equal to 3 4s are 12m square, 12 3s are 36m, 3 9s are 27. Now simplify. 9m square, here is 12m square, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस 12m स्क्वायर, 9m स्क्वायर माइनस 12m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, माइनस 12m 36m लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा 36 प्लस 12 माइनस 48, 36 प्लस 12 48 प्लस 4 27 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस होगा, सो इट इज माइनस 23। ऑल टर्म्स आर नेगेटिव, सबका साइन चेंज कीजिए और पुट y m इज इक्वल टू y अपॉन x, साइन चेंज कीजिए, 3 इंटू वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 48 m का वैल्यू y अपॉन x माइनस 23, सॉरी इट इज प्लस 23, सबका साइन चेंज कीजिए और m का वैल्यू पुट कीजिए y अपॉन x। सिंप्लीफाई दिस, 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 48y अपॉन एक्स प्लस 23 इक्वल टू 0। ओके, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा 3y स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 23x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So required equation is 23x square plus 48xy plus 3y square equal to 0 is required combined equation, is required combined equation। यहाँ पे जो इक्वेशन मिला था that is auxiliary equation। ये कौन सा इक्वेशन है? auxiliary equation। ऑक्सिलरी इक्वेशन में m का वैल्यू y अपॉन x पुट कीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, इजंट इट? एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ विल टेक द नेक्स्ट वन। ओके, चलिए दूसरा सम लेते हैं, उसके पहले इसको जरा रफ करते हैं। Okay, now see the second question. Second question is, see the second question. If the angle between the lines represented by the angle between the lines, if the angle between the lines represented by, बड़ा क्वेश्चन है, if the lines, if the angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, is equal to the angle between the lines
is equal to the angle between the lines, angle between the lines represented by 2x square minus 5xy, 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0, then show that प्रूव करना है आपको 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी, 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है. नाउ सी व्हाट वी हैव गिवन. द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई इज गिवन. ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. इसका एंगल किसके साथ इक्वल है? अनदर होमोजेनियस इक्वेशन इज गिवन 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0. सपोज इसका एंगल होगा थीटा, इसका होगा अल्फा. इट मीन्स वी हैव गिवन दैट थीटा इक्वल टू अल्फा. ओके, नाउ लेट थीटा बी द angle between the lines represented by क्या होमोजेनियस इक्वेशन? ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. से इक्वेशन 1. तो फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h square minus ab upon a plus b. Okay, say this equation 1, because we have to take equality theta equal to alpha. Also, alpha be the angle between the lines, represented by क्या है दूसरा इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, ये दोनों इक्वेशन कंपेयर कीजिए एंड राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ a, h एंड b. तो a इक्वल टू कितना आएगा? 2. 2h इक्वल टू कितना आएगा? -5. तो h हुआ -5 अपॉन 2 एंड b इक्वल टू 3. फॉर्मूला सेम यूज होगा, थीटा की जगह आएगा अल्फा. tan अल्फा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h का स्क्वायर -5 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस ए बी, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 अंडर रूट -5 अपॉन 2 का स्क्वायर 25 अपॉन 4, 2 3s are 6 अपॉन 2 प्लस 3 5. Therefore tan alpha is equal to क्या आएगा? 2 अंडर रूट, एलसीएम लीजिए रूट के अंदर, तो एलसीएम होगा 4. 25 माइनस 4 6 are 24 अपॉन 2 प्लस 3 is 5 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 25 माइनस 24 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 5. 1/4 का स्क्वायर रूट लीजिए. tan अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय 5. 2 गेट कैंसिल, इट इज इक्वल टू आएगा 1/5. ओके, नाउ सी tan अल्फा इज 1 अपॉन 5. से इक्वेशन 2. ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या है गिवन कंडीशन?
नाउ सी एंगल इज इक्वल, दोनों एंगल कैसे सेम, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा, tan theta is equal to tan alpha. What is the value of tan theta? 2 under root h square minus ab upon a plus b is equal to tan alpha is 1 upon 5. Now squaring this, squaring both sides, 2 का स्क्वायर होगा 4, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल्ड, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन डिनोमिनेटर में ए प्लस बी का स्क्वायर, राइट साइड में 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 25 4 जार 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर, हेंस द प्रूफ. ओके यही प्रूव करना था, 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. एनी डाउट? Isn't it? Any problem regarding to this? Okay, now we'll take one more sum. Find the combined equation of lines. Okay, see the one more. Find the combined equation of lines. Third question, find the combined equation of lines passing through the origin. Find the combined equation of lines passing through the origin and each of which making an angle, making an angle 30 degree with the x-axis, 30 degree with the x-axis. We have to find the combined equation of lines which passing through the origin, each of which making an angle 30 degree with the x-axis. Let m be the slope of required line. Okay, now here m1 is equal to m2. Now the equation of x-axis is y equal to 0. Slope of x-axis is m2 is equal to क्या आएगा 0. y equal to 0 माइनस x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, इस तरह से आएगा m2 इज इक्वल टू 0 अपॉन -1 दैट इज 0. सो m2 इज इक्वल टू 0, m1 माइनस m2. नाउ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, देन क्या फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ स्लोप, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. हियर m1 इज इक्वल टू m, m2 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस m1 इज m, m2 इज 0. सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू क्या आएगा m अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 1.
So this can be written as m upon 1 plus 0. 1 plus 0 is 1. Tan 30, what is the value of tan 30? That is 1 upon root 3 is equal to m. Therefore 1 is equal to root 3m. स्क्वायरिंग कीजिए उसको. ओके, मॉड में इसलिए स्क्वायरिंग कीजिए. स्क्वायरिंग क्या तो होगा 1 इज इक्वल टू 3m स्क्वायर. देयरफॉर 3m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. पुट m इज इक्वल टू y अपॉन x. तो क्या होगा इक्वेशन 3 इंटू y अपॉन x द होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दैट इज ओके 3y स्क्वायर, ये होगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. तो ये होगा 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर. तो इक्वेशन आएगा 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन. इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन. और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. ऐसा भी आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. एनीवन, isn't it? Okay, we will continue in the next lecture.